Good morning, students. It's my 13th video on trigonometry. On trigonometry, it's the part 2. Part first, I've already explained you. Today I am taking the book for class 9th, Concise Mathematics. All the students of St. Peter's, St. Patrick's, St. Paul's, St. Clair's, those who are appearing in class 9th and studying the topic and seeing my video of trigonometry, today I am going to solve the questions on trigonometry, exercise number 2.1. In previous video, I explained about all the trigonometrical ratios, all the 6 ratios of trigonometry. So now today I am going to solve the questions of exercise number 2.1. So students, it's of class 9 Concise Mathematics of Selena publication for ICSE students. Now we are taking trigonometry exercise number 22A. Yes, 22A exercise. Now read the question. From the following figure, find the values of. This figure is given to you. This is right angle triangle. Right angle triangle means out of the 3 angles, one angle is of 90 degree. Their measurements are given. AB is equal to 3 and CB equal to 4. Now you have to calculate the trigonometrical ratios of all the 6. First of sin A, then cos A, then cot A, sec C, cosec C and tan C. So you have to find the values of all these. Now I am going to solve this question number 1. Please see. This is your figure as shown in the book. It's given ACB is a right angle triangle. Now we know two values. One base is 4 and perpendicular is 3. So according to the Pythagorean theorem, hypotenuse का square is equal to base square plus perpendicular square. This is the basic formula of Pythagorean theorem by which we can calculate the third side of any right angle triangle. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की थर्ड साइड पता करने का ये तरीका है. तो आपको दो साइड मालूम है. हमने यहाँ पे देखा कि इधर रेफरेंस जो दिया गया है वो ए से कहा गया है, तो आपको वैल्यू जो निकालनी है वो साइन ए की निकालनी है. जब ये साइन ए इज द एंगल ऑफ रेफरेंस, ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो इसके अपोजिट जो होगा वो इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा. Opposite to A, this angle of reference, this line is, this is perpendicular. तो ये perpendicular है, तो we will draw this angle over here. This shows right angle. And the line adjacent to this perpendicular, this line is an adjacent line, is called base. For angle A, this is perpendicular and the adjacent line is base, and the line opposite to base is hypotenuse. This line is hypotenuse. So now by Pythagorean theorem, hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square. तो AC square is equal to CB square plus AB square. Now we put the value over here. So value of CB is equal to 4, तो 4 का square, and value of base is 3, तो 3 का square. 4 का square is equal to 16 and 3 का square is equal to 9. We add them, we get 25. तो AC square is equal to 25. तो AC square equal to 25, AC is equal to 5. The square root is equal to 5.
तो यू गेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज. दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज. ओके, तो दिस इज AC. AC is equal to root of 25. तो value you get is 5. Now according to the question they asked, now you have to find the value of sin A. तो आपको sin A की वैल्यू निकालनी है इस एंगल ऑफ रेफरेंस A के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे दिया है sin A. तो A विल बी द एंगल ऑफ रेफरेंस, जिसके साथ में जो भी यहाँ पर ये दिया गया होता है उस वही एंगल ऑफ रेफरेंस कहलाता है. तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया. तो ये CB लाइन इज परपेंडिकुलर और ये इसके एडजेसेंट लाइन जो है वो बेस कहलाएगी. इस बेस के अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो साइन क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो वी विल राइट sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is given, what is CB? CB is perpendicular and AC, this is hypotenuse. The value of CB is 4. CB का मान जो है वो 4 है और AC का मान जो है 5. तो sin A is equal to 4 upon 5. So this is your answer. So number 1 is solved. Now another part of same question number 1 is number 2. Now we have to find out the value of cos A. The same triangle is over here. The angle of reference is A. तो ये angle of reference है. Now you have to find the value cos. तो cos आप देखिए, cos क्या होता है? Base upon hypotenuse. Cos is base upon hypotenuse. तो बेस आपका यहाँ पर कौन सा है? AB. और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? AC. तो बेस की वैल्यू कितनी हुई? 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हुई? 5. सो cos A की वैल्यू कितनी हो गई? 3 upon 5. तो ये आपको समझ में आ गया? ओके. नाउ फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर आपको कोसेक C निकालना है. ये देखिए कोसेक C यहाँ पे लिख कर आया. पहले के क्वेश्चंस में A लिख करके आ रहा था. तो जो ये लिख करके आया है वही एंगल ऑफ रेफरेंस कहलाएगा. पहले में A रेफरेंस था, अब मैं दूसरा आपका ट्रायंगल ये बना के दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस आपका C हो गया. जब ये एंगल ऑफ रेफरेंस है तो इसके अपोजिट ये आया, तो हम इसको परपेंडिकुलर कहेंगे. A के केस में ये परपेंडिकुलर था, अब C के केस में ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये लंब हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया. और इस परपेंडिकुलर के साथ वाली भुजा, इस परपेंडिकुलर के साथ वाली लाइन एडजेसेंट लाइन कहलाती है. उसको हम बेस यानी कि आधार कहते हैं. ओके. इस बेस के अपोजिट में जो लाइन होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण कहेंगे. ठीक है. तो पाइथागोरियन थ्योरम से हम AC की वैल्यू 5 निकाल चुके थे, तो वही 5 वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी. ओके स्टूडेंट. ठीक है. अब क्या होगा? यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया. कोसेक C के केस में परपेंडिकुलर इज AB. ओके. तो हमें कोसेक C की वैल्यू निकालनी है. तो कोसेक C क्या होगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. कर्ण को आप लंब से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? AC. AC की वैल्यू कितनी है? 5. और आपका परपेंडिकुलर कितना है? AB. AB की वैल्यू कितनी है? 3. तो ये 5/3 ये कोसेक C की वैल्यू हो गई. ओके. अब जब नीचे आप देखना, ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है. अगर डिनोमिनेटर छोटा आ रहा हो तो हम इस नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं. इसका आंसर फ्रैक्शन में लेकर के आते हैं, यानी कि जो आंसर आएगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा. इसको फर्दर डिवाइड कीजिए. 3 1 जा 3, कितने बचे? 2 बचे. और नीचे यहाँ पे आता 3. तो 1 होल नंबर 2/3 इज द आंसर. तो मैंने आपको एंगल ऑफ रेफरेंस A यानी कि केस नंबर 1 जो पहले आपको वीडियो में सिखाया था, और केस नंबर 2 एंगल ऑफ रेफरेंस C,
दोनों ही तरीके से परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना समझाया और दोनों के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। तो इसी तरीके से ये मैंने 6 में से आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 के, बाकी के 3 आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, what written to in question number 2, from the following figure find the values of। तो फिगर आपकी ये दी गई है, इनसे वैल्यूज आपको कितनी निकालनी है। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। पहले आपको cos b, इधर tan c, इधर sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, और 4th पार्ट में sin b cos c प्लस cos b sin c। ये आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सेकंड पार्ट की इस फिगर के हिसाब से ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने ऊपर समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपकी फिगर दी गई है। इसमें आपकी BC लिखा है 17 और A भी दिया है 8। आपको वैल्यू फाइंड करनी है थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। जब आपको 2 जगह की वैल्यू मालूम है तो तीसरी आपको निकालनी है। तो हम ये किससे निकालते हैं? पाइथागोरियन थ्योरम से। वेरी गुड। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेन्यूज आपका कितना दिया गया है? 17, बेस आपका 8, तो 8 का स्क्वायर होगा, ये p स्क्वायर हो गया। यहां से आपकी ये वैल्यू निकल करके आई p इक्वल टू 15। ओके, तो ये 15 जो है आपका परपेंडिकुलर निकल गया। yes, sir. 2 बेस और हाइपोटेन्यूज आपको मालूम थे, आपने परपेंडिकुलर यहां से निकाल लिया। yes, तो 15 आपने ये लिख लिया। ओके, yes, sir. अब क्वेश्चन कौन सा पूछा गया आपसे? कहा गया है sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, ये आपको निकालना है। देखिए अब फिगर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहां तो रेफरेंस एंगल दिया था a, क्वेश्चन के हिसाब से यहां दिया है sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b। तो अब रेफरेंस एंगल a नहीं रहेगा। नाउ रेफरेंस एंगल इज b। जब रेफरेंस एंगल b है तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर के एडजेसेंट साइड वो उसकी बेस हो गई। तो ए बी जो है आपका बेस कहलाएगी। ये AC आपका परपेंडिकुलर और BC आपका हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ठीक है, yes, sir. अब आपको तीनों साइड मालूम है। नाउ पुट द वैल्यू। साइन B क्या होता है? साइन B क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या दिया है? AC और हाइपोटेन्यूज BC। क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर आ रहा है तो AC का स्क्वायर लिखा जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर BC का स्क्वायर। अब cos स्क्वायर B, तो cos B जो है आपकी BA, ये रहा आपका क्या है? ये बेस डिवाइडेड बाई BC यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो BA का स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, और यहाँ BC का स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू 15 दी है, BC की 17, BA 8 दिया है, BC दिया है 17। तो इनके हमने स्क्वायर किए। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 17 का स्क्वायर 289। ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। जब आपके डिनोमिनेटर में दोनों नंबर एक जैसे आ रहे हैं और ये फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो इस तरह की इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं वो एलसीएम लेके की जाती है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 289। इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 1। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से होगा, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इस नंबर को फिर इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 1। 1 का मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो ये आ गया। इन दोनों को ऐड करने पे आया 289, और नीचे भी 289। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B, इसकी वैल्यू हो गई 1। सो दिस इज योर आंसर। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ये आपको फिगर दी गई है
इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको ये 6 वैल्यूज़ निकालनी है, कॉस ए, कॉसेक ए, टेन स्क्वायर ए और इस तरीके से। तो इनमें से अब ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से निकाल लेंगे। ये वाला मैंने सॉल्व करके आपको दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में उस हिसाब से निकाल देंगे। ये भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसका 6th पार्ट। देखिए, यही क्वेश्चन था आपका। ये फिगर है, वैल्यू इसमें दिया है कॉट स्क्वायर सी माइनस ये 1/sin स्क्वायर सी। नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर इस वाली फिगर में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो BDA, देखिए ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया और एक ट्रायंगल ये बन रहा है इसमें, ये वाला। ओके, तो दूसरा ट्रायंगल हुआ BDC। लाइन BD इज कॉमन टू बोथ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये BD लाइन जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो दोनों की ये परपेंडिकुलर हो गई। अब दोनों ही केस में यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज नहीं बताया गया और इस वाले में जो है बेस नहीं बताया गया। इन दोनों को हम अलग अलग ट्रायंगल के, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और यहाँ पर बेस, दोनों को पाइथागोरियन थ्योरम से निकालेंगे। देखिए, पहले वाले केस में बाय पाइथागोरन थ्योरम इन ट्राइएंगल ADB इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें देखिए AB का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से है। AB स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। BD दिया है हमको 4, तो 4 का स्क्वायर। AD हमको ये मालूम है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू जो आई आपकी AB इक्वल टू 5 निकल के आई। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरन थ्योरम के हिसाब से इन ट्रायंगल BDC, अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस वाले ट्रायंगल में फिर हम हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरन थ्योरम लगाएंगे। यहाँ BC की वैल्यू 12 दी गई है, ये रही 12। DC हमको निकालना है और DB हमको ये 4 दिया गया है, परपेंडिकुलर हमको 4 बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। 12 का स्क्वायर 144, DC हमको निकालना है 4 का स्क्वायर 16, ये DC स्क्वायर इधर ही रह गया। प्लस के 16 जब इक्वल के दूसरी तरफ आएंगे तो प्लस 16 माइनस 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस किया तो 128। अब ये 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से डिवाइड करके आप ये देखिए इस तरीके से ये प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे। उसके बाद हम पेयर बनाएंगे। ये 2 का एक पेयर बना, उसका 2 बाहर ले लिया। ये फिर 2 का पेयर बना, इस 2 का एक 2 बाहर आ गया। फिर ये 2 ये पेयर बना, फिर इसका 2 एक बाहर आ गया। तो 2 जा 4, 4 जा 8, पेयर वाले तो आपके हो गए 8 और अनपेयर्ड जो है आपका ये 2 बचा। तो आपके DC की वैल्यू क्या निकली? 8√2। ये √2 में आएगा क्योंकि ये अनपेयर्ड है, इसीलिए इसको √2 में लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की ये पाइथागोरन थ्योरम लगा करके वैल्यू पता कर ली। अब देखिए, अब ये फिगर आपका इस प्रकार से हो गया। यहाँ हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू हमको नहीं मालूम थी, हमने 8√2 लिख दी। ये हमको BA यहाँ पर नहीं मालूम थी, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पता कर ली पाइथागोरन थ्योरम से, तो इसकी वैल्यू 5 निकली। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है? कॉट स्क्वायर C माइनस 1/sin स्क्वायर C की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट स्क्वायर C आपका क्या हुआ? DC का स्क्वायर, कॉट DC अपॉन BD, ये DC अपॉन BD यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका कॉट होता है। बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल की हम ये बात कर रहे हैं। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ये स्क्वायर में पूछा गया है, इसीलिए ये स्क्वायर लगाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1/sin स्क्वायर C। आपको यहाँ ये गौर करना है कि ये C संग में आ रहा है। यहाँ कॉट के साथ में C आ रहा है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस C माना जाएगा।
जब एंगल ऑफ रेफरेंस सी यहाँ पर होगा तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के एडजेसेंट लाइन जो होती है ये बेस हो गई आपकी, ये डीसी बेस कहलाएगी, और बेस के अपोजिट में जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो बीसी आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए ये वैल्यू आपकी हो गई। ओके, अब आप देख लीजिए इसमें, तो डीसी की हमने ये वैल्यू वहाँ से पीछे निकाली थी, अभी आपको दिखाया था, तो वो निकली 8√2, तो 8√2 का स्क्वायर कर दिया। BD आपकी 4 है, देखिए B से लेकर D तक ये वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, 1 अपॉन BD का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर पूछा है। साइन स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो BD का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, BD आपकी जो है 4 दी गई है, ये लिख लिया 4, BC आपको 12 दी गई है, BC ये 12 दिए, ये 12 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 8√2 का स्क्वायर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8√2 मल्टीप्लाइड बाई 8√2। 4 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 16, 1 का ये 1 रहा, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, डिवाइड की जगह डिवाइड, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ आ जाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जा तो 64 हो गया, √2 × √2 ये हमने लिख लिया, 16 का 16 आ गया, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 16 अपॉन 144 है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये वाली नीचे वाली फिगर उल्टी हो जाएगी, 144 ऊपर आ जाएगा और 16 नीचे। इनको आपस में हम काटेंगे सेम नंबर से, तो ये 16 9 जा 144 होता है, ये कट गया, ठीक है, ये 9 टाइम्स कटा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 64 का 64, √2 × √2 का क्या आएगा, अकेला 2 आएगा, ठीक है। 16 को 64 से काटा, 4 टाइम्स कटा, तो 4 2 जा 8, नीचे क्या है 1, माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या है 9 1 जा 9, नीचे क्या बचा है 1, ये आ गया। जब भी कोई फ्रैक्शन प्लस या माइनस बीच में आता है फ्रैक्शन के, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। 1 1 का एलसीएम क्या आएगा 1 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आएगा 1, जो आंसर 1 आया उसका ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 1 8 जा 8। अब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, तो 1 9 जा 9, तो प्लस के 8 है माइनस के 9, तो आंसर में क्या आएगा माइनस के 1, और नीचे क्या है प्लस के 1, ये आपस में कैंसिल हुए, फिर 1 आया, और संग में क्या रहता -1। सो cot स्क्वायर C -1 अपॉन साइन स्क्वायर C, इसकी वैल्यू जो है आपकी -1 आई। ओके स्टूडेंट, सो ऑल द ICSE स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके कंसाइंस मैथ्स को लिया, उसका ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 22A के क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, इनके जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस थे वो आपके लिए सॉल्व कर दिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसलिए जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।